Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, here we are studying chapter number 17, Mental Mathematics. Children, this chapter we have started in our previous classes where we have learned how to solve questions related to mental maths, where we apply different operations like addition, subtraction, multiplication and division. Here we are solving such questions which have some missing figures in them. जहाँ पर कुछ digits missing होती है, हम mental maths की help से इन्हें solve करते हैं. Children, in our previous class we have started solving exercise number 17.1. Question number 1 we have completed. So now let us move on. In this class we are going to solve all the parts of question number 2. Let's get started with question 2 here, part number 1. Question 2 is fill in the blanks, part 1. So in such questions, you know, here we have operations of addition and subtraction. Further we will solve for multiplication and division also, but this question is based on addition and subtraction, where in such questions we have some missing figures. यहाँ पर कुछ boxes दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर निकालना है कि इसमें कौन सी digits आएंगी. देखिए किस तरह से निकाल सकते हैं हम. You know that in mental maths we apply first what is given to us. With the help of what is given to us we try to figure out the answer. Then we apply the approximate method also. यहाँ हम digits रख के देखते थे जिस तरह से हमने पिछले questions में solve किया है. बच्चों हम यहाँ रखते थे स्मॉलेस्ट डिजिट और बिगेस्ट डिजिट. देखिए यहाँ पर हमें एडिशन करना है. यहाँ पर हमारे पास डिजिट दी हुई है 7. 7 में हम कौन सी डिजिट ऐड करेंगे जिसका आंसर, तो 2 डिजिट का आंसर आएगा जिसमें 1s प्लेस पर आएगा 3 और 10th डिजिट हमारे पास अननोन है. देखिए बच्चों 7 में जब हम 6 ऐड करते हैं हमें मिलता है 13. ठीक है, 13 का 3 जो है 1s प्लेस पर ऑलरेडी है, इसका मतलब 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा 1. सो दिस इज आवर आंसर. In this box we will get 6 and in the next box we have here 1. Now with the help of such methods let us solve the remaining questions. Here we have the second part. Again we have to do addition. 4 में हम कौन सा digit add करेंगे कि हमारे पास यहाँ 2 आएगा. तो बच्चों here you can find out किस तरह से कर सकते हैं. हम यहाँ ऐड करना है हमें, तो आपको पता है 8 + 4 क्या होता है 12 होता है. 12 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए यहाँ पर 1s डिजिट हमें पता है कि 2 आएगी, तो 10th डिजिट पे आ जाएगा 1. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट. Third one, again here we have to do addition but here we have 2 digit numbers. So let us try to mentally solve. यहाँ पर हमें 9 में digit ऐड करनी है जिससे आंसर आना चाहिए 4 1s प्लेस पर. बच्चों आपको पता है 9 + 5 क्या होता है 14 होता है. यहाँ पर 4 आ गया है 1s प्लेस पर. अब ये जो 1 है एज अ कैरी 14 की ये चल जाएगी नेक्स्ट हाउस में. सो 2 + 3 is 5, 5 + 1 we will get here 6. So this is our answer. Here we are solving the questions mentally without the help of any pen or paper. This is called mental maths. Now fourth part, again here we have to do addition. We have here 2 numbers of 2 digits. Okay, first number में देखिए हमारे पास 1s डिजिट नहीं है और सेकेंड नंबर में हमारे पास 10th डिजिट नहीं है, बट आंसर की हमारे पास 1s और 10th डिजिट है और आंसर आएगा 3 प्लेसेस पर. मतलब यहाँ जो 100th प्लेस के डिजिट है वो भी हमें नहीं पता है. किस तरह से हम सॉल्व करेंगे. देखिए एडिशन हम लास्ट से सॉल्व करना चालू करते हैं 1s प्लेस पर. अब देखिए हमें निकालना है कि 5 में हम कौन से डिजिट ऐड करते हैं कि जो आंसर आता है वो यहाँ आता है 6. आपको पता है बच्चों 1 + 5 क्या हो जाता है 6 हो जाता है, तो हमने सबसे पहले लिख दिया है 1. अब देखिए आगे आइए 2 में हम कौन सी डिजिट ऐड करें कि आंसर आएगा 0. वी हैव हियर ओनली 1 ब्लैंक, सिर्फ हम यहाँ एक डिजिट लिख सकते हैं. सो नाउ यू नो दैट 2 + 8 क्या होता है 10 होता है. सो हियर वी विल राइट डाउन 8. अब देखिए 10 की जो 1 एज अ कैरी है ये चल जाएगी नेक्स्ट हाउस में, यहाँ आ जाएगा 1. So here we have got our 3 of the answers for 3 unknown boxes. Now let us solve the next question. Here we have the fifth part. Again we have to do addition and the numbers here are 3 digit numbers. देखिए फर्स्ट नंबर में हमारे पास 10s की डिजिट नहीं है और सेकंड नंबर में हमारे पास 1s की डिजिट नहीं है. बच्चों किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. देखिए ये डिजिट हमें पता है, आंसर आएगा 7. 3 में हम कौन सी डिजिट ऐड करेंगे कि आंसर आएगा 7. देखिए आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं जब हमें ऐड करके निकालना होता है और ये डिजिट पता नहीं है. ठीक है, 3 में हम
क्या ऐड करें कि आंसर 7 आए, तो क्या कर सकते हैं हम, इस 7 में से जो नॉन डिजिट है उसे आप माइनस कर दीजिए. सो 7 - 3 इज 4. सो डेफिनेटली हियर आंसर इज 4. नाउ यू कैन चेक 3 + 4 क्या होता है बच्चों, 7 होता है. ठीक है, इसी तरह से देखिए 8 में हम कौन सी डिजिट ऐड करते हैं कि यहाँ 0 आएगा. देखिए 0 किस तरह से आ सकता है, 8 + 2 = 10, क्योंकि यहाँ 10th डिजिट पे आ गया है 0, इसका मतलब 1 कहाँ चल जाएगा, नेक्स्ट हाउस में. सो हियर वी विल गेट 2. ओके, अब देखिए 6 + 2 is 8, but we will add this carry, that is 9. So here we have got our answer, children. Now let us solve the next. Here we have the sixth part. Again we have to do addition here. Numbers we have 3 digit numbers. देखिए सेकंड नंबर हमें पूरा दिया हुआ है, that is 396. अब हमें पहले नंबर में वंस डिजिट निकालनी है. देखिए 6 में हम क्या ऐड करेंगे कि आंसर 8 आएगा. यू नो द ट्रिक, इसमें से आप माइनस कर दीजिए. 8 - 6 = 2. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, ये आप मेंटली कर लीजिए. 8 में से 6 माइनस करिए, आएगा 2. सो अगेन यू कैन चेक 2 + 6 is 8. So our answer is correct. Here children, now directly we have to solve for 10th digit. 4 + 9 होता है 13. 3 आ जाएगा सेम हाउस में, 1 चला जाएगा 100th हाउस में. Now here you can check 8 + 3 क्या होता है 11. यहाँ हम 1 कर देंगे add as a carry. So here we will get 12. देखिए 12 का 2 आ रहा है, 1 चला जाएगा फिर से नेक्स्ट हाउस में. यहाँ हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, यहाँ 1 डायरेक्टली आ जाएगा इस बॉक्स में. So this is our answer, right? Now let us solve the next question. This is the 7th question. Here we have to do subtraction. अब हमें subtract करना है बच्चों. तो देखिए यहाँ पर 1 और एक ब्लैंक है, मतलब यहाँ पर है एक 2 डिजिट का नंबर, यहाँ पर सिर्फ 6 है. माइनस करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. तो ऐसी कौन सी डिजिट आएगी यहाँ जिसमें से हम 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा. बच्चों जिस तरह से हमने एडिशन की ट्रिक सीखी थी कि इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन में, इन दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो ये वाला आंसर हमारे पास आ जाता है. सो द ट्रिक इज जस्ट अपोजिट. जब हमें सब्ट्रैक्शन करना है तब आप इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर दीजिए. सो 6 + 4 = 10. अब देखिए 10 का 1 ऑलरेडी यहाँ पर है 10th हाउस में, तो 1st हाउस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो आप चेक कर सकते हैं 10 - 6 = 4. So this is our correct answer. Now let us solve the next part. अगेन हियर वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. 2 डिजिट के नंबर हैं हमारे पास, इसमें एक प्लेसेस अननोन है. यहाँ पर वंस और टेंस है, तो फर्स्ट नंबर में हमें टेंस डिजिट निकालनी है और सेकंड नंबर में हमें वंस की डिजिट निकालनी है. आंसर हमें पता है कि आंसर क्या आएगा, 36 आएगा. अब देखिए किस तरह से निकाल सकते हैं. 8 में से हम कौन सी डिजिट माइनस करें कि जो आंसर आएगा वो 6 आएगा. तो बच्चों आपको पता है यहाँ पर, अब ये वाली डिजिट हमें पता है तो हम ऐड करके नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, वो जो रूल है वो अप्लाई होता है इन दोनों डिजिट्स पर. ठीक है, तो अब देखिए 8 में से हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. हम जब 2 माइनस कर देंगे, सो 8 - 2 हियर वी विल गेट 6. ओके, दिस इज आवर करेक्ट आंसर. अब देखिए यहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी कि 2 उसमें से हम माइनस कर देंगे तो 3 आएगा. अब देखिए वो वाली ट्रिक यहाँ अप्लाई हो सकती है. 2 + 3 = 5. सो हियर वी विल गेट आवर आंसर 5. अब चेक करिए 5 - 2 is 3. So this is our correct answer. Now children, only with few mental steps we are solving these questions. So it's becoming really interesting. You all also have to practice in the same way. Now let us solve the 9th question. Again we have to do here subtraction. हमें subtraction करना है. आंसर हमें पता है, यहाँ आंसर आएगा 5. तो हम 2 जो है किस में से माइनस करें कि आंसर 5 आएगा. तो आप ऐड करके देख लीजिए. 5 + 2 क्या होता है बच्चों, 7 होता है. यहाँ आ जाएगा 7. 7 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा आंसर क्या आएगा, 5. दैट इज करेक्ट. देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 में से हम क्या माइनस कर दें, आंसर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है. तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा. 3 - 3 is 0. So this is our answer. Now next question, this is the 10th question. Again we have to do here subtraction. हमारे पास यहाँ जो नंबर्स हैं वो 3 डिजिट्स के नंबर्स हैं. हमारे पास सबसे पहले निकालनी हमें वंस डिजिट, फिर टेंस और फिर 100. देखिए सबसे पहले हमारे पास वंस डिजिट नहीं है फर्स्ट नंबर में, तो यहाँ ये रूल अप्लाई हो जाता है. आपको पता है 1 में से हम किसे माइनस करेंगे कि आंसर 4 आएगा. तो इस तरह के सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में इन दोनों डिजिट्स को आप ऐड कर दीजिए. सो 1 + 4 is 5. अब देखिए 5 - 1 is 4. दिस इज आवर करेक्ट आंसर. सेम वे चिल्ड्रन 8 में से 5 माइनस करना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. 8 - 5 is 3.
ये आ गया है आंसर। अब देखिए 4 में से हम कौन सी डिजिट माइनस करेंगे कि आंसर जो है 2 आएगा। सो दैट आंसर इज 2. Okay, 4 minus 2 is equals to 2 only. Here we have solved this question. Now moving on to the next part. This is 11th question. 11th question again we have to do here subtraction. देखिए subtraction करना है हमें, 3 डिजिट के नंबर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले यहाँ डायरेक्ट आंसर लाना है। 5 और 4 दोनों डिजिट हमें पता है। 5 minus 4 is children 1. Here we have solved. चलिए बच्चों अब नेक्स्ट हाउस हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर के लिए हमें निकालना है यहाँ पर 10th डिजिट क्या आएगी। देखिए हम किस डिजिट में से 2 माइनस करेंगे कि आंसर जो है 7 आ जाए। सो यू नो द ट्रिक, इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए। 2 + 7 इज 9। हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। नाउ यू कैन चेक हियर, 9 - 2 क्या होता है बच्चों? 7 होता है। सो आवर आंसर इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर 8 हमें पता है, आंसर आना चाहिए 4। तो हम कौन सा ऐसा डिजिट माइनस करेंगे? दैट आंसर इज 4 बिकॉज 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4 ओनली। हियर वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हियर वी हैव आर 12th क्वेश्चन। देखिए हमारे पास फिर से सब्ट्रैक्शन करना है। फर्स्ट नंबर हमें पता है, सेकंड नंबर की 2 डिजिट्स हमें निकालनी है। देखिए यहाँ हमें पता है 3 में से हम कौन सा डिजिट माइनस करें कि आंसर जो है 5 आएगा। देखिए बच्चों ये जो डिजिट है ये बड़ी डिजिट आ रही है इसमें से, तो हम छोटी डिजिट में से बड़ी तो माइनस नहीं कर सकते हैं कि आंसर भी बड़ा है। इसका मतलब हम बोरो कर रहे होंगे। किससे बोरो कर रहे होंगे? अपने पास वाले हाउस से। सो 9 - 1 इज 8, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से हम कौन सी डिजिट माइनस करते हैं कि 5 आता है? सो यू नो दैट द आंसर इज 8 क्योंकि 13 - 8 इज इक्वल्स टू 5। राइट चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पर हमने बोरो कर लिया था, ये डिजिट हो गई है 8। अब हमें इसमें से ही ऑपरेशन करना होगा। 8 - 5 इज इक्वल्स टू 3, यहाँ आ गया है 3। अब यहाँ भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 4 में से हम कौन सी डिजिट माइनस करेंगे कि आंसर 2 आएगा। दैट आंसर इज 2 ओनली बिकॉज 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। Okay children, now let us move on to next question. This is 13th question. देखिए यहाँ पर हमें ऐड करना है। हमारे पास 4 डिजिट के नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे वंस डिजिट, टेंस, 100 और 1000। हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट नंबर की हमें वंस डिजिट निकालनी है। किस डिजिट में हम 2 ऐड करेंगे कि आंसर 6 आएगा। सो यू नो दैट हियर वी कैन अप्लाई दिस ट्रिक। आंसर हमें क्या करना है? एडिशन करके लाना है। तो हम क्या करें? यहाँ अपोजिट अप्लाई कर दीजिए। 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4। सो यू नो दैट 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6। ओके, नाउ सेम वे नेक्स्ट 1 + 9 क्या होता है? ये दोनों डिजिट हमारे पास पता है तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 1 + 9 इज 10, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1। अब चेक कर सकते हैं आप। 2 + 5 इज 7, 7 + 1 एडेड एज कैरी इज 8। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। अब लास्ट देखिए 5 में हम कौन सी डिजिट ऐड करें कि आंसर 9 आए? तो 9 में से आप 5 माइनस कर दीजिए। हियर यू विल गेट 4। तो देखिए बच्चों 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू 14th क्वेश्चन। बच्चों 14th क्वेश्चन में हमारे पास 2 नंबर्स हैं। ये हैं 4 डिजिट के नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर वंस, टेंस, 100 और 1000। सबसे पहले हमें वंस डिजिट दोनों नंबर्स की पता है तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 0 + 8 क्या होता है? 8 ही होता है। पहला आंसर हमारे पास आ गया है। देखिए नेक्स्ट 3 में हम कौन सी डिजिट ऐड करते हैं कि आंसर 9 आता है? आपको पता है आप सब्ट्रैक्ट कर के निकाल सकते हैं। 9 - 3 इज इक्वल्स टू 6। सो हियर वी विल राइट डाउन 6। अब नेक्स्ट देखिए 6 में से 2 माइनस कर देंगे, यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो 2 + 4 क्या होता है बच्चों? 6। सो हियर वी आर मेंटली सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। 3 + 2 इज answer 5. So solve this question. Now let us move on to the last question of question number 2. This is question number 15th. Here we have to do subtraction. हमारे पास 4 डिजिट्स के 2 नंबर हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालना है। कुछ डिजिट्स हमारे पास अननोन है। देखिए फर्स्ट नंबर की वंस डिजिट हमें नहीं पता है, टेंस पता है और फिर से हमारे पास 100 डिजिट नहीं है फर्स्ट नंबर की और 1000 हमारे पास है। सो सबसे पहले हम सॉल्व करना ट्राई करेंगे जो हमारे पास पता है उनसे। देखिए हमारे पास फर्स्ट में वंस डिजिट की जो फर्स्ट नंबर है ये वाली डिजिट नहीं है, मगर बाकी 2 हमारे पास है। देखिए 7 हम किस डिजिट में से माइनस करेंगे कि आंसर 2 आएगा? तो आपको पता है यहाँ अपोजिट रूल कर दीजिए अप्लाई। ट्रिक है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन करना है तो इन दोनों डिजिट को ऐड कर दीजिए। 7 + 2 इज 9, यहाँ जब हम 9 लिख देते हैं, देखिए 9 - 7 इज
2. So our trick is applying here. Next 9 minus 2 डायरेक्टली करना है. 9 minus 2 is 7. अब यहाँ देखिए 9 में से हम कौन सी डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आंसर 0 आएगा. तो आपको पता है यहाँ पर वही डिजिट हमें सब्ट्रैक्ट करनी होगी. 9 minus 9 is 0. So here we have solved this question, children. So here we have solved exercise number 17.1 question number 2, and in our previous class we have solved, children, question number 1. So I hope you all are understanding how to apply mental maths to solve the questions without the help of any pen or paper. You can just directly solve in your mind. So it's very interesting way to solve mathematical operations. Children, in the next class we will solve the remaining questions of exercise 17.1. We will solve their few missing digits questions and also word problems. So keep on practicing, keep on learning. We will now meet in next class. Thank you everyone.